So the cell theory can be depicted by a diagram by showing both of its point in the diagram. That is, first point is every organism is made of cell. So you can show that the level of organization. You can show the level of organization. For example, that cell will make tissue. You will make a flow chart. Cell will make a tissue. Tissue will make a organ. An organ will make organ system. An organ system will make an organism. You can take any plant here. For suppose you draw a plant in the one side of left corner of your copy. You have drawn one plantlet. Then you take one part of that plant, that is for suppose leaf. Then you will take out a section of leaf peel. You will show that leaf peel is there. In leaf peel there is stomata, there are guard cells, there are subsidiary cells. So that leaf tissue is made of these cells. You will draw, after drawing a leaf, you will magnify the leaf peel under microscope. You can show by microscope that leaf peel is made of stomata, guard cells and all these cells. And in turn you again can enlarge only one cell and can draw plant cell. So this will prove that the living organism are composed of cells. Now, new cells come from pre-existing cells. How will you show that? You can show one plant cell dividing. Just like the binary fission occurs in amoeba, or you can show that plant cell because you have taken the example of plant cells. So therefore, you can do what you can do. You can bifurcate one big cell into two small cells and having two different nucleus, having every organelle separated, and having a cell wall formation of both the cells. So this will show you cell division that it's occurring, and this is how you will show the cell theory by diagram. Okay. So as you know that CBSE has opted the art integration in every subject. So the more you study with diagram, the more you use it in your notes, it will help you only, because when you understand something, then you should be able to express it in many ways, not just single way of we can say writing description, but with many different ways you should be able to express it. ठीक है, तो आप डायग्राम से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर बायो में लिख सकते हो, बायो में ही नहीं किसी भी और भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन शो बाय डायग्राम. फिजिक्स में भी आपके डायग्राम्स आएंगे, केमिस्ट्री में भी आपके डायग्राम्स आएंगे. देयर आर डायग्राम्स इन एवरी साइंस इन दैट सब्जेक्ट. इवन हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में भी कोई पोइट्री पढ़ रहे हो आप, किसी भी सब्जेक्ट में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे हो, तो उसका एक अपने आप ही एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना सकते हो. रेन के ऊपर पोएम है तो आपने वहाँ रेन बना दी, क्लाउड्स बना दिए, नीचे प्लांट बना दिया, उस पर ड्रॉप्स दिखा दी. तो अगर आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा एनिमेटेड करते हो तो आपको वो कभी नहीं भूलता. तो इस वजह से आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होगा. ठीक है, क्लियर? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको डिस्कवरी के बारे में और कौन फादर ऑफ बॉटनी है, कौन फादर ऑफ जूलॉजी है, कौन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ये सब पढ़ना था, ये सब लिखना था. ये थर्ड क्वेश्चन था. ठीक है, तो इसका लिस्ट बनाया है तानिया ने, अच्छा लिस्ट बनाया है. बायोलॉजी का फादर तानिया हैज रिटन एरिस्टोटल, बॉटनी थियोफेस्ट्रस, मॉडर्न बॉटनी लिनस, बिकॉज कैरोलस लिनस ने
एनिमल्स और प्लांट को मतलब क्लासिफाई करने के बाद प्लांट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा। जब हम कल की जो हमने वीडियो देखी थी उसको देख रहे थे तो उसमें हम कैरोलस लिनियस का देख रहे थे कि वो प्लांट्स के फ्लावर्स के स्टेमन्स काउंट करता था, प्लांट की लाइफ को एक्सप्लोर करता था। तो ही वाज द वन हु डिड अ कंट्रीब्यूशन, वी कैन से मेजर कंट्रीब्यूशन इन द बॉटनी। सो देयरफॉर मॉडर्न बॉटनी के फादर है लिनियस। Then immunology, Edward Jenner. Why? Can anybody tell me why Edward Jenner is father of immunology? Because ma'am, he is related to vaccination Yes. for smallpox. He made the first vaccine. Yes. Very good. So immunology, the father is वजह से, because immunology is a science of immune system and vaccination boost our immunity. अभी कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है कैंपेन. So that is that has a purpose that it helps to boost the immunity. Now, the next father which is written is genetics father. Who is genetics father? Yes, anyone tell me? Ma'am, Gregor John I'm Mendel. Gregor Mendel. Yes, Gregor Mendel is there. Cytology. Who will be the father of cytology? Robert Hooke. Robert Hooke. Yes, because he was the one who discovered it first. Zoology. Zoology. Aristotle. Aristotle. Aristotle, because when there were no instruments, still by looking at the creatures, by exploring the natural world, he described the digestive system. Yesterday we have seen how he mentioned in his book long time back that snail के digestive system इस तरीके का होता है और उसका esophagus ऐसा होता है। तो इस वजह से वो father of zoology हो गया। Taxonomy, Carolus Linnaeus again. Carlos Linnaeus. ठीक है। मेडिसिन, Hippocrates. Hippocrates is called as I'm father of Hippocrates. medicine because Hippocrates ने मेडिसिन को हेल्थ की डेफिनेशन दी है। एंड मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो हेल्थ के ऊपर वर्क करता है, फुल मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग को कंसिडर करता है। तो इस वजह से वो फादर ऑफ मेडिसिन हो गया हिपोक्रेट्स। एंड हिस्टोलॉजी, फ्रैंकोइस एंड बिशेट। फ्रैंकोइस एंड बिशेट इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसकी साइंस होती है? टिश्यू की। टिश्यूज को के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है। माइकोलॉजी, दैट मीन्स फंगस की साइंस। Pier Antonio Michele is the fungal uh, studies, fungal branch of study. Father, Pier Antonio Michele. And bacteriology, Louis Pasteur. So Louis Pasteur. Louis Pasteur इसका father है। Microbiology का, who will be the father of microbiology? Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Very good, because Anton von Leeuwenhoek क्यों होगा? Why? Reason? Because he discovered the first living cell. First living cell. Yes, because of the first living cells, he few bacteria from pond water, he explored the living life and drawn the diagram and sent the letters to Royal Society of London. And there, then they means believe that yes, the things are real. In real, the living organisms are there. Okay. So then I told you in the same question that you have to make a flow chart for showing all the scope of biology. Means all the fields which are there in biology subjects. You have to make one flow chart of it and then explain any one of the field which you like. Okay. So this is the thing you should have been done by now and मुझे share कर देना आज, ठीक है? अब ये यूनिट 1 है आपकी। This is unit 1, that is diversity in the living world, and chapter 1 हम पढ़ेंगे living world। तो बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आई वांट एनी वन ऑफ यू टू रीड इट। Read it. Ma'am, may I read? Yes, read.
Diversity in the living world. Biology is the science of life forms and life processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the differences between inanimate matter and living organisms. Early man defeat some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such form of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoke. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. This is the introduction. So you have got the introduction. Then I want anyone else to describe it. The language can be anything, English or Hindi, you feel like, okay. And you have to describe this paragraph also. Yes, any of you can describe it. Because it is just introduction. That's why I want you to describe. Because कल हमने introduction already बहुत अच्छे से किया था. बताइए. कोई भी एक बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा. जल्दी से एक्सप्लेन करिए. कोई भी एक बच्चा कर दो. डजेंट मैटर, कोई भी कर सकता है. यस. What happened? Are you there? Is network problem is there or some other thing is there? Am I audible? Students, are you there? Aradhya, Mansi, Shivanshi, Tanya, Uttam. What happened? Yes? What do you want? Student, I want any one of you to explain it. What are you waiting for? Yes? Nobody wants to explain it. Ma'am, actually, I am getting your voice too much low, and it was now clear to me. Okay. So explain it. Uh, Ma'am, this paragraph? Yes, this paragraph explain.
Okay, so the first unit in biology that we are going to start is the living world, and it would give a brief introduction about the history of biology. Moreover, it is more related to the part of taxonomy. So, in this, what I have learned is life can be defined as unique aggregation of molecules, and these have the tendency to express themselves through different chemical reactions, which we can call metabolic reaction. These living organism, all the living organism live almost in the all possible habitats like forest and mountains, deserts, etc., and they are linked to one another by sharing one or other genetic material, and all the living organisms show some common characteristics like organization and energy utilization and uh, regulation or growth and development, etc. So first of all, in this chapter we are going to learn about these basic characteristics, and later on how one particular group of organisms is related to the other one, on which different scientists like Carlos Linnaeus, etc., give a relation between all of them. Okay, very good description. But Shivanshi, you have given the description of complete chapter. That is very good because I think you have gone through the chapter. Have you gone through the chapter first? No, ma'am, not actually, but actually, this diversity we have gone through this in ninth standard. Okay, good. So because of that, you have explained the basic theme of the chapter. I can say that इस chapter में हमको ये living world chapter में हम लोग introduce होंगे diversity of living world से, plus हम लोगों को ये पता चलेगा life किसे कहते हैं, what we call life, how we define life, what are the properties of life. ठीक है, life forms की क्या properties होती हैं, और हमें ये पता चलेगा कि इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब जो सिस्टमैटिक चीज़ें हैं, सिस्टमैटिक एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जो कि आपकी टेक्सोनमी और फाइलोजेनी दोनों को पढ़ती है। मतलब एवोल्यूशन से आप क्लासिफिकेशन को जोड़ते हो तो वो सिस्टमैटिक में आता है, वो बिगर ब्रांच है, टेक्सोनमी इसकी सब ब्रांच है। तो इस वजह से हम सिस्टमैटिक्स का इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि कैसे सारे लाइफ फॉर्म, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, हाउ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। एनिमेट मीन्स लिविंग and inanimate means non-living. ठीक है, how they are different, they are different, but what one common feature is, what one common feature is the sense of awe, awestruck हो जाना, that means you will be amazed, you are amazed by both the things, you are amazed by fear as well as you are amazed by love equally. You are amazed by non-living things, like you will be amazed by looking at a Burj Khalifa if you go to Dubai, because it is a very marvelous and very long and huge structure, and you will be amazed by looking at, if you will for the first time look under an electron microscope to see by your own a virus, that how a virus look like, what is its shape. So you will be amazed by both the things. You will be amazed by inanimate object. You will be amazed by living objects. You will be amazed by a biologist will be amazed by looking at a new species discovered. कोई भी नई species discover हुई होगी, वो उसको देखकर बहुत अमेज होगा। तो हमेशा ये दोनों, ये कॉमन चीज़ है, अमेजमेंट होना एक कॉमन चीज़ है, जो दोनों लिविंग चीज़ भी आपको अमेज करती है, नॉन लिविंग भी करती है। ये कॉमन चीज़ है, पर डिफरेंट चीज़ें क्या है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज जो उनको नॉन लिविंग से अलग करती है। ठीक है, ये हम लाइफ प्रोसेसेस में भी ये समझते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, अभी भी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। बट इसमें फिर हमें और क्या समझ में आना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। दैट मीन जो शिवांशी ने पॉइंट बोला कि हमें ये पता चलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डीएनए,
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और किंगडम से या किसी और पुराने एंसेस्ट्रल लिनिएज होता है उसका, उससे चला हुआ आता है आगे तक। कहीं कई बार ब्रांचेस होंगी, कई बार उसके सब ब्रांचेस होंगी, जो आपका एवोल्यूशन ट्री है। एवोल्यूशन ट्री में जैसे जैसे फर्दर आगे बढ़ता गया है, वैसे वैसे उसमें नए नए स्पीशीज क्रिएट होते गए हैं। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड देन फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कंजर्वेशन बायोलॉजी और हमने क्या क्या चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे हमने टेक्सोनॉमिस्ट ने क्लासिफाई करने के बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्डर्ड वे में कंजर्व किया है, रखा है, संभाला है। और फिर अर्नेस्ट मेयर का यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है कि अर्नेस्ट मेयर जो है वो जर्मनी में कैंपटन में बॉर्न हुए थे एंड देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के फॉर्म पोस्ट पे रहे थे। और इनको डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का, बिकॉज डार्विन फादर है एवोल्यूशन का। वो प्रीवियस साइंटिस्ट था, फ्रॉम द अर्नेस्ट मेयर से पहले आया था। पर जब मॉडर्न साइंस को एक डार्विन चाहिए था या फिर इवोल्यूशन का समझना था, कुछ और नॉलेज एक्सटेंड करनी थी, तो अर्नेस्ट मेयर ने करी है। नाउ वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक थे। मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, उसने यहाँ पर ज्वाइन किया था 1953 में, रिटायर्ड हुआ था 1975 में। और इनको एक टाइटल से सम्मानित भी किया गया, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमरिटस, ठीक है, अवार्ड मिला है इनको ये। थ्रू आउट हिज नियरली 80 years career, his research spanned ornithobiology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics and history and philosophy of biology। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लोर करी। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of the evolutionary biology। उन्होंने origin of species की diversity को अपने evolutionary biology के पूरे करियर का एक central question रखा। He also pioneered the awarded the three prizes widely regarded as the triple crown of biology। इसने 3 prizes इनको मिले, Balzan Prize 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्राफोर्ड प्राइज in 1999। एंड देन मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर ऑफ 2004 में ही died। So this is a very interesting account of a scientist। So by looking at these, we should get inspiration that yes, there is a much more life to explore, and there is a lot to do in the science field. Now this chapter starts, what is living? This is the first paragraph of the chapter. So I want anyone else to read. Shivanshi has replied one question, one Tanya has read one paragraph. Now next, anyone else will read this paragraph. Ma'am, may I read? Yes, read. How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leaves us speechless. The beauty of galloping hordes of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes away and deep sense of wonder. The ecological conflicts and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and second is philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. Okay. सो हम यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, तो ये भी लिविंग वर्ल्ड को की एक्साइटमेंट बता रहा है। ये भी ये बता रहा है कि हम जब भी नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तब भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज नेशनल ज्योग्राफिक पे ऐसे ही प्रोग्राम्स आते हैं कि
मैन वर्सेस वाइल्ड एंड किस तरीके से बेयर ग्रिल्स पूरा उन चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को इनकाउंटर करता है, वहाँ से बचता है, किस तरीके से वो इतनी सारी नेचर के साथ रहता है। प्लस दूसरे द वाइल्ड, वाइल्ड में भी जब हम देखते हैं तो हाउ लॉयन गेट्स इट्स प्रे, हाउ टाइगर हंट्स, तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। तो हम फॉरेस्ट को दिखाते हैं, सवाना को दिखाते हैं, ब्यूटी। और जब अगर हम दूसरे जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। प्लस अगर हम, ये तो हुई टीवी की बात, पर अगर हम अपने खुद के ही गार्डन में भी जाकर देखें तो हम वहाँ पे सिंपल से एक फ्लावर को देखेंगे, अगर उसके ऊपर चलते हुए किसी कैटरपिलर को देखेंगे तो भी हम एक्साइटेड होते हैं, वहाँ पे भी हमें लाइफ दिखती है। या किसी, अगर हम बर्ड को देखेंगे तो देन ऑल्सो वी विल सी द लाइफ। if we see the nature in, we can say, truth, we will be amazed by the beautiful or beauty of the nature and the wilderness of the nature and the wonderfulness of the nature, because we will be speechless, हमारे पास कोई ऐसे वर्ड ही नहीं होंगे कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वंडर क्रिएट करती हैं, डीप सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करती हैं। फिर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेकर्स डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड लाइफ इज। मींस इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन मींस कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात हो रही है कि कोई फूड है तो कोई उसका प्रीडेटर है, कोई मतलब मार कर ही खाता है, किल कर कर खाता है, और कोई कॉपरेशन से खाता है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाते हैं। एक पेड़ पर अगर 5 तरह की चिड़िया खाना खाती हैं तो वो 5 तरह की चिड़िया अलग अलग टाइम पर चुगने आती हैं और फिर उसी पेड़ से वो खाना अपना पेट भरती हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ती नहीं है। तो इस तरह से दोनों चीजें देखी जाती है नेचर में, कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है और कॉपरेशन भी देखा जाता है। और अगर हम सेल के अंदर के रिएक्शंस को चेक करें तो सेल के अंदर भी काफ़ी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमें हमें बताएंगे कि एक्चुअली में लाइफ है क्या, एक सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये चीज़ नई है, ये चीज़ ऐसी क्यों होती है। वो सब चीज़ें हमें क्वेश्चन मार्क देती हैं कि इंडीड व्हाट इज लाइफ। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट, और इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और छुपे हुए हैं अंदर ही। कौन से? पहला वाला तो है टेक्निकल वन एंड सी का आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग। पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन लिविंग हम किसको कंसिडर करेंगे और किसको हम कहेंगे नॉन लिविंग। अब सेकंड, दूसरा फिलोसफिकल क्वेश्चन है जिसमें फिलोसफी यानी पर्पस, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर लाइफ ऐसी है तो हाउ डज लाइफ वर्क। एक क्वेश्चन तो हो गया लाइफ क्या है, बट एक क्वेश्चन हो गया कि हाउ लाइफ वर्क, तो वो फिलोसफिकल हो गया, वो वर्क कर रही है तो क्यों कर रही है, पर्पस क्या है उसका, करना क्यों है उसे। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लाइफ भी हो गया। तो हम सेकंड क्वेश्चन को अभी नहीं डिस्क्राइब करेंगे एज वी आर स्टडीइंग द बायोलॉजी एंड चैप्टर इज व्हाट इज लिविंग, सो वी विल फर्स्ट एक्सप्लोर व्हाट इज लिविंग। नाउ व्हाट इज लिविंग, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और बच्चा रीड करेगा? यस Ma'am, may I? यस रीड। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind. Immediately, as unique features of living organism, one can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. All living organisms grow, increase in mass, and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Yes. A multicellular organism grows by cell division. In plants, this growth by cell divisions occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope.
In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. Mountains, boulders, and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. Conditions under which it can be observed in all organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living systems. A dead organism does not grow. Good. Reproduction, likewise, it is a characteristics of living organism. यहीं तक पढ़ना है, पहले अभी हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं। हमने ये समझा कि पहली प्रॉपर्टी समझाई इस पैराग्राफ में, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज एक्सप्लेन, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। और ये बताया सेकंड पैराग्राफ में बताया व्हाट इज और हाउ ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये हमें सेकंड पैराग्राफ में बताया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें डिफाइन करने की कोशिश कर, ट्राई टू डिफाइन लाइफ के वक्त उन्होंने कहा कि अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमें ये पता चलेगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस करना, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देना, ये यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें और फीचर्स भी जोड़ दें, जैसे मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेट करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, इमर्ज करना, ये भी इमर्जेंस करना, ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं। अब हम इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हम ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर के साथ, ये ट्विन कैरेक्टर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा तो उसका मास भी बढ़ेगा और उसका नंबर भी, सेल्स का नंबर भी बढ़ेगा और इंडिविजुअल्स भी बढ़ेंगे। ये दो ट्विन कैरेक्टर है। ट्विन मतलब जुड़वा, जो एक चीज होगी तो दूसरा भी होगा। A multicellular organism grow by cell division. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन की, वो कंटिन्यूअसली होगी। प्लांट्स कभी भी ग्रो होना बंद नहीं करते थे, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो होते रहते हैं, जबकि एनिमल में सर्टेन एज तक होती है। However, cell division occur in certain tissues to replace lost cells. पुराने सेल्स जो खराब हो गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होती है। एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म तो जितनी बार अपना सेल डिवाइड करते हैं उतनी बार वो ग्रो करते हैं। वो सेल डिवीजन, उनके पास सेल डिवीजन के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है ग्रो होने का। इन विट्रो में अगर हम कल्चर लगा के जाएं, इन विट्रो कल्चर मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में अगर हम कुछ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ रख दें, उस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा कल्चर डाल दें। जैसे अगर हम एक जनरल अगर अपने घर पे देखें तो घर के एग्जांपल ले लें। हमने एक बाउल में मिल्क रख लिया और इस बाउल में मिल्क रखा है और इसमें एक स्पून क्या डाल दी, दही डाल दी थोड़ी सी, ठीक है। और इस थोड़े से वार्म मिल्क में अगर हम दही डाल देंगे तो नाइट में रख देंगे, ओवरनाइट, तो यहाँ पर वो दही वाले बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कर्ड बन जाएंगे। इट विल बिकम कर्ड, वी विल गेट व्हाट, कर्ड। तो कैसे हुआ, हाउ विल यू गेट फ्रॉम मिल्क, इसमें मिल्क था, मिल्क कर्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि हमने एक चम्मच इसमें क्या डाले थे, बैक्टीरियाज, लैक्टोबैसिलस, हमने कल्चर डाला था बैक्टीरिया का इसके अंदर। वी हैव पुट बैक्टीरियल कल्चर टू द मिल्क, यहाँ पे मिल्क था, फिर वो अच्छे से परफेक्टली सेट हो गया कर्ड में, इट इज सेट इनटू द कर्ड। तो कैसे हुआ, हाउ इट डिड इट ट्रांसफॉर्म, हाउ इट मेड मिल्क फ्रॉम कर्ड, बिकॉज सेल में वो एबिलिटी है ग्रोथ की, बिकॉज सेल कैन ग्रो। तो ये भी एक तरह से इन विट्रो कल्चर हो गया कि हमने टेस्ट, ये तो हमने लिविंग एग्जांपल दे दिया डेली लाइफ में। अगर हम यही चीज हम इन विट्रो करने का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में कोई चीज एक्सपेरिमेंट करना। तो टेस्ट ट्यूब में कोई चीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, जैसे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर देखा था, तो एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हम लोग मतलब मीडिया रखते हैं, सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, उसके ऊपर हम कोई भी प्लांट का एक टिश्यू रखते हैं, वी की प्लांट टिश्यू, कोई भी पार्ट रख सकते हैं प्लांट का। यहाँ पे हमने छोटा सा स्टेम का टुकड़ा रखा। अब थोड़े दिन बाद हम इस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कि
यही जो कल्चर के ऊपर ये जो होगा, ये प्लांटलेट क्या हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा, लीफ निकलने लग जाएंगे, जड़ निकलने लग जाएगी। तो दिस इज व्हाट प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ऐसी चीजें जो टेस्ट ट्यूब में होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो कल्चर्स। इन विट्रो कल्चर में हम देखते हैं, हम ग्रोथ को नाप सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। एक ऐसी मशीन्स होती हैं, मान लो हमने किसी पेट्री डिश में कल्चर लगाया, वी हैव पुट पेट्री डिश में, हमने पेट्री डिश में भी रखा जाता है, ये पेट्री डिश है, इसमें हम यहाँ पर सेमी सॉलिड मीडिया भर देते हैं। मीडिया क्या होता है, खाने की चीज भर दी यहाँ पे हमने जेली जैसी। अब उस खाने की चीज पे हमने सॉइल का सैंपल लिया और सॉइल के सैंपल से हमने डाइल्यूशन बनाया। डाइल्यूशन मतलब एक कह सकते हैं उसको डाइल्यूट किया, पानी में घोल दिया, ताकि क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सॉइल में तो मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होंगे, तो पहले उसका टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूशन बनाएंगे, फिर यहाँ पे उसको एक लूप की मदद से यहाँ थोड़ा सा बैक्टीरिया छोड़ जाएंगे। जब हम यहाँ थोड़ा सा बैक्टीरिया छोड़ जाएंगे तो अगली बार हम यहाँ देखेंगे अगले दिन आके और ढक्कन बंद कर देंगे, पेट्री डिश का ढक्कन बंद कर देंगे और उसको एक इंक्यूबेटर जैसे में रखते हैं, ढक्कन बंद कर जाते हैं पेट्री डिश का। फिर जब हम आके देखते हैं अगले दिन, यहाँ पे भी बैक्टीरिया, यहाँ पे भी बैक्टीरिया, यहाँ पे भी, हर जगह बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती है। क्या बन जाती है? कॉलोनीज। तो ये क्या है, हम इनका काउंटिंग कर लेते हैं, हम इनका काउंटिंग भी कर सकते हैं, नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। ये क्या होती है? ग्रोथ होती है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। एंड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये यूनिसेलुलर में तो म्यूचुअली जुड़े हुए इवेंट्स हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हो या अमीबा हो,